एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्शन। Axis Bank is the third largest private sector bank in India. With a profit size of 2,85,628 crore rupees as on 31st March 2012, the bank offers the entire spectrum of financial services. Within 2 decades of its operations, Axis Bank boasts of an impressive footprint of thousands of domestic branches and tens of thousands of ATMs spread across the country, in addition to several overseas branches. Over the past several months, Cobra Post Associate Editor Syed Masroor Hasan visited dozens of Axis Bank branches over several states, and his encounters with officials of the bank establishes beyond doubt that Axis Bank is indulging in widespread money laundering with the connivance of the senior management of the bank. Axis Bank branches are indulging in gross violations of many aspects of the Income Tax Act, FEMA, RBI regulations, and Know Your Customer or KYC norms. You will see a series of evidence wherein the bank officials have confessed to having laundered several crores of rupees of black money. This investigation raises several questions about the legitimacy of the bank's deposits and also raises questions about its declared profits. The big question is, what percentage of the bank's profits, for instance, could be derived from illegitimate and cheap deposits? How much of this slimy money has been invested in the bank's insurance and other products? The undercover investigation had Hasan take the alias of Rajiv Sharma. He posed as a frontman for an imaginary politician who wants to launder his pile of ill-gotten cash. Occasionally, he even posed as a businessman. He also created characters like Vandana and Neeta, the imaginary minister's imaginary wives. Of course, no polygamy here. And importantly, Sharma ji never had any black money to invest in the first place. The encounters with Axis Bank officials had them suggest a host of methods to the reporter by which they were willing to help the politician launder his scam-tainted cash. They were willing to accept lakhs and crores of rupees in cash. Sometimes, even the mandatory PAN card would not be necessary. They were willing to invest the cash in long-term insurance products. They universally agreed to keep the identity of the politician a secret. They agreed not to report the transactions to the RBI and other authorities like the Income Tax Department. They agreed to open multiple accounts and close them at will to facilitate the investment of the client's black money and its subsequent withdrawal. They agreed to open dummy accounts. They agreed to allot lockers to the client for storing several crores of black money. They agreed to facilitate the transfer of this black money as remittance abroad through the bank's accounts and other nebulous means. They agreed to personally collect the black money from the client's premises. They offered to organize additional PAN cards to their clients to help them dodge the tax authorities. They offered to deposit the cash in sundry accounts which are meant exclusively for the bank's internal processes. They offered to organize the illegal cash to be sent out of the country through TCDC cards. They suggested setting up NGOs and show huge incoming amounts as donations. They offered to sell gold in exchange for the client's black money and with the advice that they can pledge the same gold for a loan from the bank. In almost all cases, the officials suggested opening multiple accounts in the bank to route the black money into long-term investment plans. Coming in handy are certain provisions such as Section 10(10)(d) under IRDA, which are being used by the bank's officials to render the maturity amount totally tax-free. Operation Red Spider cuts through the grim dark web of lies and deceit in dozens of branches of Axis Bank across the country. Panning across the states of Rajasthan, Haryana, New Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka, Cobra Post Associate Editor Syed Masroor Hasan investigates the modus operandi of laundering black money in this reputed bank. Dubious financial operations are insidiously engineered inside the unassuming facade of one of India's most trusted private banks, Axis Bank. A. Mishra is Deputy Manager in the Ashok Niketan branch of Axis Bank in New Delhi. He seems to be a banker with a sixth sense.
Just a few words from his client and he gets straight to the point. Mishra understands that main cheez white की है and suggests options to launder his client's money. अगर मान लीजिए हम 50 लाख डालते हैं तो उसको हमें कितने समय के लिए रोकना पड़ेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिलेगा और पूरा वाइट हो जाएगा हमारा पैसा। अच्छा, मेन चीज वाइट भी है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं सर। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट है FDR में जाए तो FDR में आपको बहुत ज्यादा वाइट वाली सिचुएशन नहीं मिलेगी। ऑप्शन ये है ना हमारा, क्योंकि मैक्स के टाइप के थ्रू टाइप है तो कुछ आप मैक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में ऑप्शन तो सबसे बेस्ट है इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म में डाल देना। हाँ, उसमें देखिए 3 ऑप्शन होता है। एक तो मार्केट लिंक प्लान होते हैं, एक होता है वो आपको फिक्स जैसे लाइक FD की तरह 11% का रिटर्न देकर ओवर द पीरियड ऑफ 60 लाख रुपए दे दिए 6 साल में। 6 साल में आपने 60 लाख रुपए दे दिए तो 7 से लेकर 16 ईयर तक जो आपको टोटल पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा अप्रॉक्स 1.5 करोड़ के आसपास। यानी कि 60 19 हाँ 1.5 के आसपास जो पैसा है तो और जो पैसा मिलेगा आपको अगर आप मंथली अगर आप लेना चाहें तो मंथली आप ले लीजिए। सारा चेक से राइट होगा पूरा 100%। तो आप The deputy manager advises his client that FDRs will not serve his objective of converting his black money to white. Axis Bank has a tie-up with Max, so invest 60 lakh rupees in its insurance policy for 6 years and get back a happy white amount of 1.5 crore rupees. And not just the deputy manager, but the branch head will supervise the transaction. मैं आपको ये बताऊँ ना, इसमें एक चीज और है। आप जैसे कहेंगे वो चीज ठीक है। एक चीज होता है कि एक तो मैं, दूसरा ब्रांच है, 2 लोगों को लूप में लेकर चलेंगे तो ज्यादा हो रहेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वेलकम बढ़िया। आपके यहाँ आप और सर उनकी भाई की बैटिंग कभी मनोरंजन भी बहुत चलती है। हाँ। With such collaborative enterprise, it is easy to dodge the tax ministers. The banker tells his client that no one will challenge his income after the 7th year of investment. मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, जो पैसा आप 16 साल देंगे 7th ईयर ऑनवर्ड्स आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और 16 साल मैच्योरिटी होती है। उसमें इनकम टैक्स का एक और रूल है, बड़ा मतलब इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि जो पैसा आप 7 साल देते हैं 8वें साल आपसे नहीं पूछा जाएगा। 100% कोई पूछेगा 70% इनकम टैक्स नहीं चाहिए। इसीलिए आपके लिए बेटर ऑप्शन ये कि आप एक साथ ही 10 साल बाद पैसा निकालें। 10 साल बाद निकाल लीजिए। मोटा नहीं मंत्री को ये बता दूंगा कि आपने 1 करोड़ 80 लाख दिया एक्सिस बैंक को और आपको 3.5 करोड़ रुपए राइट होते मिल गया 10 साल के बाद निकाल लीजिए, 8 साल के बाद निकाल लीजिए। बेसिकली ये क्या है ना, इंश्योरेंस प्लान नहीं है। मैं आपको बता दूं सिंपल कॉन्सेप्ट, ये मंथली इनकम प्लान है बेसिकली। तो इनकम प्लान में क्योंकि अगर मैक्स लगा है या प्रूडेंशियल लगा है मीन्स वो इंश्योरेंस पार्ट उसका होगा और लॉकिंग पीरियड अगर 3 ईयर एंड अबव होगा तो उसमें इंश्योरेंस होगा ही। मेन बात तो ब्लैक प्रोवाइडर खत्म बात वो अपनी कहीं कराएंगे तो टेंटल डी प्रोवाइड होगा आपको, टेंटल हमें नहीं चाहिए। So this is the monthly income plan from Axis Bank. Invest your money in a long-term plan for 7 years with 16 years maturity period. An investment of 1.8 crore rupees will yield returns to the tune of 3.5 crore rupees. All your IT concerns will be taken care of after 7 years and you get back all your money completely laundered. Thanks to section 1010D. And if you have black money, Axis Bank is happy to give you a locker, the biggest one. दूसरा हमें ये बताइए आपके वंदना जी जो मंत्री जी की वाइफ, इनको मौका चाहिए फरवरी में जो 5-7 करोड़ आना है वो कैश का 500 के नोट आने। सारे मंत्री ने इससे डील किया, उसको 500 के नोट में बोला कि 1000 के लेन देन प्रॉब्लम जरूरी है। वही चीज होती है। हाँ तो वही चीज होती है, आपको तो पता ही सारी चीजें आप समझा है, तो हमें बड़ा लॉकर दीजिएगा जो बड़े से बड़ा हो। लॉकर दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोइंसिडेंट है, आज जो हमारा सबसे बड़ा एक लॉकर है खाली होता है। आज हो रहा है, आज आपको आज नहीं हो रहा है, प्लीज उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, 4-5 दिन 10 दिन का खेल है। Bring all your dirty black money to Axis Bank and store it in its lockers. If you bring in 5 to 7 crore rupees in denominations of 500 rupee bills, the bank knows exactly what to do. Like the deputy manager says, हमारे यहाँ जो लॉकर्स होती हैं तो वही चीज होती है। And आज ये कोइंसिडेंट है कि हमारा सबसे बड़ा लॉकर है वो खाली हो रहा है। अकाउंट में जो पैसा आएगा तो उसमें फिर नंबर ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, नंबर ऑफ अकाउंट्स थोड़ा कैश आपके लिए इजी हो मैनेज करना। जैसे सीडी सर्विस करेंगे, सीडी यही करेंगे, जो भी अकाउंट से आप करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे अकाउंट कितना करेंगे इसको आप, पूरा डायरेक्ट करेंगे? कौन सा वाला? जो इन्वेस्टमेंट वाला
इन्वेस्टमेंट तो जैसे आप करें जो आपको सूट करे, जिसमें हम कंफर्टेबल हो, जो आपने ऑलरेडी किसी कस्टमर को पहले दिया हो कैश के में, जिसमें सेफ रहा होगा। देखिए कैश में तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप पहले साल जैसे कैश में करा भी देते हैं, तो दूसरे साल में ना अगर आपको पैसा देना है तो मंथली पे कर सकते हैं जाके कैश डायरेक्ट पे, कहीं नहीं जाना आपको, सब कुछ यहीं से मिलेगा, आपको दोबारा कहीं नहीं जाना। आप एक बार मेरा नंबर सेव कर लीजिए। So people, please save this deputy manager's number. He is the one-stop shop for all your black money. Mishra tells his client to deposit his black money in multiple accounts in the bank. He volunteers. आपके लिए easy होगा manage करना. He further tells his client that he can even make monthly cash deposits from the second year onwards. With such friendly advice, indeed the black money traders need look no further. Your neighborhood Axis banker will give you endless options to convert your black money to white. इसमें सर और भी कुछ ऑप्शंस है, बताइए सर। जो भी बेस्ट होगा वो कर लेंगे। गोल्ड का भी एक ऑप्शन रखेंगे, हर ऑप्शन को गोल्ड भी कैश में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गोल्ड मार्केट से ज्यादा रेट में तो नहीं है आपके यहाँ पे? होता है, लेकिन गोल्ड में आपको दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, वैसे वापस बैक होता है क्या? होता है। अच्छा, वो होता है। यहाँ पे तो अगर आपको भी आइडिया, तो सारे ज्वेलर है वो बहुत महंगी परचेज कर लेते हैं। अच्छा, हाँ वो बैंक का वो तो गारंटी नहीं होता उसमें कैटेगरी में। हाँ तो पूरा ही होता है। असल में जैसे 31,000 मार्केट का रेट है आज, तो हमारा रेट होगा 34। का डिफरेंस होगा, बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब वैल्यू ज्यादा रहती है ना तो एड पार आ जाता है, तो वो चेक से डेबिट कर देंगे जब हम पैसा लेके जाएंगे। और भी अकाउंट होते हैं ना सर, किसके थ्रू कैसे रूट करना है सब देख लेंगे। तो आप हमारा पैसा भी दूसरे अकाउंट जो आप बता रहे हैं कोई और अकाउंट से उससे रूट करा भी हम सेफ रहेंगे ना, दूसरे वाला ऑप्शन भी देख लेंगे। Diversified investments is the way to go to launder your illegal cash. Buy gold with your black money, and the Axis banker says that there are many dwellers who will easily purchase that gold, in return for which you will naturally be paid in white money. And then there are other nebulous methods which the banker says किसके through कैसे route करना है सब देख लेंगे. Axis bankers will only suggest to you tried and tested ways of laundering money. आपको तो आइडिया होगा, ऑलमोस्ट सारे जो वो है तो बिल्डर बैठते हैं, तो एंट्री घूमना तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, घूमना देना घूम जाएगी वो इतना वो चीज नहीं है। अभी क्या हुआ है कि इनका एजुकेशनल प्लॉट सारी चीज देख के चलनी पड़ेगी, सेफ्टी। हाँ वही मेथड अपनाइएगा जो ऑलरेडी पहले किसी कस्टमर का सेफ रहा होगा, और ऐसा नहीं कि जिसको पॉलिसी आपने पहले बेची है ना उसका सेफ है 2-3 साल हो गए हैं, तो हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि 2-3 साल लेके काफी साल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बस काफी अच्छे नाम है, लेकिन चर्चा नहीं होनी चाहिए तो अच्छा है। ये कभी भी बिजनेस का रूल होता है। Sure, the banker has learned the rules of his business. Just a passport and a photograph and you are in business. Leave the rest to Axis Bank. पॉलिसी आप देंगे, इसमें मुझे डॉक्यूमेंट सब क्या देना पड़ेगा आप ये बताइए, कम से कम जिसमें मतलब इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे। इनकम टैक्स के लिए सर देखिए, क्योंकि नाम चाहिए होगा तो देखिए मैं अगर पैसा अपने वापस लूंगा तो आपको दूंगा जो ड्राइविंग कार्ड दिखाइए डॉक्यूमेंट चीजें, क्योंकि आपको ये तो बस इनडायरेक्ट नेसेसिटी और फोटोग्राफ आईडी एड्रेस का काम करेगा। पासपोर्ट दे दूंगा, पासपोर्ट कहीं तो बनना देगा, पासपोर्ट तो सारी बात तो सॉल्व करेंगे। तो पासपोर्ट जनता जो है नीति की वाइफ इंग्लैंड जाती आती हैं, तो ये कह रही थी कि उनको परिचित भी रहती है इंग्लैंड, तो ये कह रही थी कि जो पैसा मैं लॉकर में रखूंगी 5-7 करोड़ रुपए है कैश का जो रखूंगी, उसको उनको थोड़ा भी रूट करना है, 50-50 लाख 40-40 लाख हो जाएगा। एक और भी कॉन्सेप्ट होता है उसमें, ट्रैवल कार्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है, डीसी कार्ड्स बोलते हैं या आउटवर्ड रेमिटेंस होता है, वो देख लेंगे उसमें कोई इशू नहीं होगा। हाँ ये जाएगा भी लॉकर में आपके रखना थोड़ा, लेकिन एकदम नहीं, जल्दी मत कीजिएगा। नहीं कुछ देखिए, लॉकर में रहे अकाउंट में रहे, अकाउंट में भी रख सकते हैं। अकाउंट में इतना कैसे रखेंगे 7 करोड़ रुपया, पैन कार्ड पे भी रख सकते हैं, तो आप किसी और अकाउंट से करेंगे आप कैसे करवाएंगे? अकाउंट से भी कर सकते हैं। हाँ आप वो अकाउंट से भी कर सकते हैं, दूसरे के अकाउंट से भी कर सकते हैं। आप हमारा दूसरे के अकाउंट से कर दीजिएगा, जो चार्जेस है पे कर देना, ठीक है ना, जो भी आपके अकाउंट वगैरह हो। हमारे नहीं होता है, सब वो कस्टमर के चार्जेस होते हैं, आपको सारी रेट होती है, फोन पे कर देना। ऐसे नहीं होंगे कि 6% 4% आउट, वो नहीं होंगे जो जेन्युइन होंगे, जो जेन्युइन होंगे वही वो देगा। उससे मोटा मान लो क्लेम कितने होगा, एक मोटा इतना वो देते हैं, आप मान लो 10 करोड़ का मान, हाँ 10 करोड़ का भी मान के चलिए, जो रेट होता है वो होता है 6%, 4%, 3% का रेट होता है, लेकिन होता है ना कि 10 करोड़ आपको सेटल करना है, तो 5 लाख 10 लाख मैक्स। One photograph and a passport is all it takes to infuse
black money into the investment policies. A large amount of black money can also be stored in the lockers. Still more can be parked in the Axis Bank accounts without the PAN card. Exchange some of that black money for TCDC cards. These cards are like ATM cards that can be used to draw local currency from ATM machines in any country. And for crazy amounts of cash to be sent out of the country, the friendly bankers at Axis Bank will suggest you other options. An option that will cost you about 4 to 6% for the amount you wish to transfer. The Axis banker tells his client that he can help transfer 10 crore rupees overseas by paying a fee of about 10 lakh rupees. N. Chopra is assistant manager with Axis Bank in Kolkata. After describing the various investment plans available with the bank, where his client can multiply his 50 lakh rupees in the long term, he gets down to discuss the process with which his black money will be laundered. मैं क्या करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप 3 अकाउंट खोल लो, ठीक है? बेस्ट है 3 अकाउंट खोल के वहाँ से हम लोग करेंगे कि किसी को कोई नहीं है सर। आजकल 10 लाख रुपए क्या है, 10-15 लाख रुपए कुछ नहीं है। तो आपका टैक्स करोड़पति जो होते हैं उनको पकड़ेंगे कि आपको पकड़ेंगे? नहीं सर, ये पॉलिटिशियन है ना, इनके पीछे भी लोग हो सकते हैं ना, इनके अगेंस्ट वाले। पॉलिटिशियन के नाम पे कहाँ और उनकी वाइफ के नाम? पॉलिटिशियन की वाइफ का हस्बैंड ऑफ नहीं लिखना फॉर्म में, फिर आपको बेस करके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। The Axis banker suggests to his client to open 3 accounts in the bank through which the client can route his money into the investment plans. The IT guys have bigger fish to fry than go after 10-15 lakhs. But just to be doubly safe, the Axis banker can organize a second PAN card for his client. Yes, you heard that right. Listen into what the Axis banker can do for black money hoarders. सर मैं एक बार और एक चीज़ सजेस्ट करूँगा सर, अगर होता है तो एक पैन कार्ड ऐसे बना लो, मतलब बहुत कस्टमर यहाँ पे हैं 2 पैन कार्ड बना के रखे हुए, मतलब मैं आपको आप ही कराइएगा, मैं क्या करूँगा वो सब आप ही करिएगा। दिस इज नॉट माय पार्ट, आई विल गिव यू ओनली कैश और ऑफ द बुक्स बोल रहा हूँ आपको। नहीं, जो भी मतलब सेफेस्ट हो, मैं ये नहीं जो ऑलरेडी मतलब पहले। हाँ सर, उसके लिए कुछ नहीं है आपका, मैं 3 नाम में करवाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टू स्टार्ट विद यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, जहाँ पे क्या करेंगे इन फ्यूचर आपके नाम पे हो सकता है कि पैन कार्ड नहीं लगी, पैन कार्ड के बिना वो करेंगे सर। लेकिन ब्रांच मैनेजर और सीनियर्स को इन्वॉल्व करके उनको इन्फॉर्म करके ही सर, ऐसा नहीं जब ले रहे हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए उनको इन्फॉर्म करके ही लूँगा। बहुत कस्टमर यहाँ पे हैं जो 2 पैन कार्ड बना के रखे हुए हैं। That is Axis Bank for you. Most of us, like you and me, with 1 PAN card can fret over our income tax. But Axis Bank will go the extra forbidden mile for those with crores of black money. Its bankers will organize an additional PAN card to soak in the illegal cash and mislead the taxman. Our banker admits that he will be doing it off the books, but he will get it done with help from his seniors. And the corrupt banking practices do not end with the PAN card scam. There are sundry accounts in the bank for money laundering. दूसरा, एक्सिस बैंक में अकाउंट हम यहाँ खोल देते हैं जो आप बता रहे हैं जी, उसके थ्रू रूट करें, सेफ रहेगा। आपने जो बताया कि अकाउंट खोल दीजिए, अकाउंट में डाल दीजिए। सर उसमें मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगा, क्योंकि अगर अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा तो वो अकाउंट आप 6-7 महीना, 8 महीना, 10 महीना बाद क्लोज करके फिर एक नया अकाउंट खोल के वैसे करेंगे ताकि आँख में पड़े नहीं। आँख में तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आप ऐसे कीजिए जैसे आपने पहले किसी कस्टमर करा, उसकी आँख में नहीं पड़ा, मेरी आँख में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा सर, वो हमारा मामला है, हम देखेंगे कैसे सेफ रहेगा कस्टमर्स के लिए। ये मतलब अगर सैलरी अकाउंट में फेंक के वहाँ से हम लोग पे ऑर्डर करके निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, तो वहाँ नहीं करके अकाउंट से रूट करके वो फायदा रहेगा कस्टमर के लिए, वैसे रूट करेंगे। आप बेस्ट कौन सा समझते हैं जो आपने अपनाया, बेस्ट कौन सा सेफ रहेगा? सर मैं समझता हूँ अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं अभी, क्योंकि 50 देखिए आप मुझे 10 लाख रुपये अभी देंगे कैश में, 10 लाख रुपये दिए, 10 लाख रुपये मुझे दिए, अकाउंट खुल गया और जो पड़ा हुआ है हम अपने संडे अकाउंट में फेंक के रखेंगे, संडे अकाउंट से उठा के फिर आपके अकाउंट में फंड कर देंगे, वहाँ से हम रुपये उन्हें निकालेंगे। संडे अकाउंट या संडे अकाउंट सर हमारा इंटरनल अकाउंट रहता है। इंटरनल अकाउंट मतलब जैसे सपोज जो
कोई सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं तो उनसे इनिशियल डिपॉजिट हमें कुछ लेना पड़ता है, कैश लिए, चेक लिए, तो वो अकाउंट में इनिशियली हम कस्टमर के मतलब कैश या चेक लेके उसके बिना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो कैश लेते हैं तो सन्ड्री अकाउंट में डाल के जब जैसे अकाउंट खुलता है तो कस्टमर का अकाउंट फाइल कर देते हैं। तो जी आप मुझे जो सेफेस्ट रहेगा सर, देखिए एक बार अकाउंट खुल जाएगा तो मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंट के थ्रू ग्रोथ करेंगे पहले, और इनके अगर फर्स्ट आपका ये वाला हो गया, जो फ्यूचर आएगा तो फिर हम देख लेंगे फिर कैसे क्या करना है। अगर होता है तो पैन कार्ड बना के मतलब वी कैन डू दैट। So, our super helpful banker tells his client that if his transactions still attract the tax authorities, he will close the account after 6 to 7 months. Indeed, that should engage the tax ministers in a game of perpetual hide and seek. Also, the bank has internal accounts called sundry accounts. These are internal to the bank where customer deposits are temporarily parked before actually being deposited in the customer's accounts. So, bank accounts are the safest mode of laundering black money. And for everything else, there is the second PAN card. The Axis banker says, अगर होता है तो PAN card बना के मतलब we can do that, उसमें कोई problem नहीं है. This begs the question, is it possible to open an NRI account for our minister's wife such that some of the illegal money can be routed overseas? बात है सर, अगर सपोज आपका यहाँ पे रेसिडेंट इंडियन अकाउंट है, सपोज जैसे आप मैम का बोल रहे हो रेसिडेंट इंडियन, तो एक स्टेटस, दो स्टेटस एक बैंक पे नहीं हो सकता है। सपोज रेसिडेंट इंडियन अकाउंट आपका मैम का खोले तो फिर हम सेविंग नहीं खुलेगा, तो NRI अकाउंट नहीं। ओके, एक ही खुलेगा। रेसिडेंट इंडियन क्योंकि सर एक तरफ से फ्रॉड हो जा रहा है। अच्छा, ये वाला चेंज करना पड़ेगा, इसको NRO अकाउंट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से खुलेगा। तो एक ही अकाउंट एक ही बैंक में खोलें, NRO खोलें या NRI खोलें, दोनों नहीं खोल सकते। वही मैं सजेस्ट करूँगा, ये वाला खोल सकते हैं। मैं वो अगर कोई मतलब नाम में कुछ ये रहे तो वो मैं करवा दूँगा। तो करा दीजिए आप NRO में, क्योंकि पैसा उन्हें यहाँ से जॉर्डन निकालना है। अच्छा, एड्रेस प्रूफ है? एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा, मैं बात करता हूँ, अगर वो देती हैं तो दोनों बात दे दीजिएगा सर, मैं करवा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Chopra tells us that an individual cannot have a resident as well as a non-resident account in the same bank. एक तरह से ये fraud हो जा रहा है. Really now? But then again he says, अगर कोई नाम में कुछ ये रहे तो वो मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. The Axis banker can convert a savings account to an NRO account. So the minister's wife can carry up to $1 lakh as a business traveler or up to $20,000 as a tourist. Of course, this is all illegal, as the banker admits. Off the hooks है कि आपको unauthorized डालूंगा. There seems to be no order to the insanity of the banking practices in Axis Bank. Here are the creative ways in which the bank can launder your black money. Create an additional PAN card and let the tax authorities go on a merry-go-round. Open new accounts to deposit your money and route it into investments. If it triggers an IT alarm, well, close those accounts. Create a sundry account for the client, which is actually an internal account strictly meant for the bank's use. Deposit the illegal money in the sundry accounts. This is the nebulous machinery at work inside Axis Bank to spin crores of rupees of black money. It's just another day in the Noida branch of Axis Bank. The Cobra Post undercover reporter makes a cold call at a busy hour in this branch and meets Ash Srivastava, Deputy Manager, Operations. A politician's black money needs to be converted to white. वाइट चाहते हैं ना? हाँ, वाइट चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, अराउंड 10 साल तक। कोई प्रॉब्लम? कोई आप बताना चाहिए? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेइंग टर्म मेरा 6 इयर्स है, लॉकिंग पीरियड 3 साल है। अच्छा, 3 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं और पेइंग 6 ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें TDS कहीं नहीं कटना। पक्का? 200%। कोई हिडन चार्जेस वगैरह कोई आपके? कोई हिडन चार्जेस नहीं है, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू ब्लैक और वाइट कन्वर्ट करने के लिए। One cold call and within minutes, the Axis banker provides a solution to help a client wash his filthy cash. Long-term investment is the way to go. No TDS and a 12% gains in addition to the laundered amount, says Srivastava,
कोई हिडन चार्जेस नहीं है एंड दिस इज द बेस्ट वे टू ब्लैक और व्हाइट सिंपल. शी देन डिस्क्राइब्स अ सिंपल मेथड. सिंपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगता है जो डेट सिक्योरिटीज होती है, वो गारंटीड इंटरेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देती है. इसमें पीटीएस का कुछ नहीं करता. इनकम टैक्स का कहीं फिगर नहीं है. पैन नंबर मत दीजिएगा. पक्का पैन नंबर मत दीजिएगा क्योंकि पैन नंबर से कई बार ट्रेस होता है. हाँ, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ट्रेसेबल हो जाता है. पैन नंबर मत दीजिएगा. ईएल दे दीजिएगा. पासपोर्ट पासपोर्ट दे सकते हैं. इलेक्शन कार्ड कुछ भी कहीं का भी बनाओ ऑल ओवर इंडिया सब चल कोई जाएगा. प्रॉब्लम नहीं. दिस इज द बेस्ट वे. Indeed, it is a simple plan and executed with perfect ease. But what's simply shocking is the Axis banker advising a client, पैन नंबर मत दीजिएगा क्योंकि पैन नंबर से कई बार ट्रेस होता है. पासपोर्ट दे सकते हैं, इलेक्शन कार्ड दे सकते हैं, कुछ भी कहीं का भी बना हुआ सब चल जाएगा. अकाउंट खोल लीजिएगा. जैसे आप चाहें 3 अकाउंट हैं, 3 अकाउंट खोल दीजिए आप. खोल दीजिएगा. उसी समय हम आपको किट भी दे देंगे, चेकबुक दे देंगे. उसी समय हैंड टू हैंड एटीएम कार्ड दे देंगे. हैंड टू हैंड सब हो जाएगा. कैश डाल दीजिएगा उसमें, कैश से बना देंगे. रूट हो जाएगा. कोई रूलिंग नहीं, आप कहीं से फिगर आउट नहीं होगा पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ लगा, कुछ नहीं. पैन नंबर ही सिर्फ एक चीज़ होती है जिससे ट्रेसेबल हो जाता है. सिक्योरिटी जो होती है वो चेक कर सकती है. इसलिए आप पैन नंबर मत दीजिए. बेस्ट है जी, बेस्ट है, पैन बहुत नंबर बढ़िया मत जी. दीजिए. ईएल दे दीजिए, पैन भी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, सब बना दीजिए. And coming up next is the Axis banker actively advising tax evading methods to her client. FDs will give low interest and will require the source of income, and mutual funds cannot happen without showing the PAN number. मत करिए. एफडी में बहुत जल्दी ट्रेस आउट हो जाता है. सबसे बड़ी बात है फिर आपसे पूछा जाएगा ये पैसा आया कहाँ से. वो प्रॉब्लम हो जाएगा हमको. तो एफडी में मत करिएगा. एफडी में एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा आपको. बहुत ही इसमें उसमें तो जाना ही नहीं है. प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें. हम शो कहाँ से करेंगे, बताएंगे कैसे, बुक्स में कैसे करेंगे. बुक्स में कैसे शो करोगे. ये तो हो गया कि निकल गया इन्वेस्टमेंट का, कैश में दिखा दिया. ये पक्का ये आपने पहले किसी क्लाइंट को दिया सेफ राज का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो. 100% है. मैंने केसेस निपटाए हुए हैं आपसे. अच्छा अच्छा. बाकी अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आप करेंगे वो बिना पैन के होगा नहीं. क्योंकि सेबी का नॉर्म आ गया है कि अगर आप म्यूचुअल फंड डालते हैं तो वो बिना पैन नंबर के एक्सेप्ट नहीं करेगा. पहली बात तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है. इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको डालने का कोई मतलब नहीं है. और मार्केट ओरिएंटेड अलग होता है कि मार्केट अच्छा जा रहा है तो इसमें ना तो पैन की ज़रूरत है, ना तो पैन की ज़रूरत है, ना ही कोई ग्रांड रिकॉर्ड है कि ये पैसा आया कहाँ से और इंटरेस्ट आ गया. ये चीज़ है. इंटरेस्ट आपका अकाउंट में आएगा भी नहीं. चेक्स आएगा भाई. तो चेक्स आएंगे कहीं पे भी विड्रॉ कर लो. कहीं पे भी हो सकता है. So that's the advice from Axis Bank to all black money traders. Do not show your PAN card because your transactions will be traced. Do not invest in FDs because you will need to declare your source of income. Do not opt for mutual funds because you will need to show your PAN card. This better be a wake-up call to all the tax ministers and regulators. But until such time, Axis bankers continue to be the black money traders' best friends. फर्स्ट सेकंड मार्च को 5-7 करोड़ रुपये आना गेटर नोडा से. बड़ा कोई डील उनका तो बड़ा पैसा आना है तो उसके लिए वो सब कैश में आएगा. उसके लिए भी मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ पे आपसे एडवाइस लेनी पड़ेगी. लेकिन वो कहाँ कन्वर्ट करना है उसको वाइट ही करना है हमें. अगर हमारा सेम डी हो जाए 2 दिन में हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी चार्जेस का होगा एक्स्ट्रा हम पे भी कर देंगे. लेकिन हमें विश्वास वाले आदमी चाहिए. समझ रहे हैं ना आप. सर मैं बिल्कुल समझ रही हूँ. एक कहीं बस प्लीज़ कहीं डिस्क्लोज ऑफ. मैं समझ रही हूँ पूरी बात आपकी. तो लेकिन उसके लिए बस अकाउंट होना चाहिए होगा. आप कोई ना मैं कह रहा हूँ मैडम के नाम से वंदना जी के नाम से खोल दीजिए. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आप ये भी कर सकते हैं कि मैडम के नाम से अपना डाल दिया, अपना बच्चों के नाम से डाल दिया, चल जाएगा. वो तो मैडम के नाम होगा. 3 मैं लोग वो बता हमारे. दूंगी कितना कितना किसमें डालिएगा. ठीक तो ठीक आपका है. पूरा कन्वर्ट. Srivastava tells a client that she will organize for all his money to be converted to white and provide him a locker to store his cash. दूसरा ये था कि जो पैसा आएगा वो कोठी पर तो जाएगा नहीं, ना क्रॉट प्लेस वाली कोठी पर जाएगा, ना यहाँ कोठी पे हम रखेंगे. हमें लॉकर चाहिए बड़ा. मार्च में फर्स्ट वीक लॉकर इसी के बेसिस पे मिल जाएगा. बड़ा लॉकर जिससे कि हमें यहाँ पे कैश रखने में कंफर्टेबल रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो. समझे ना. लॉकर इसी के बेसिस पे मिल जाएगा है ना. इसी के
डेली बेसिस पे दूसरा वर्कर्स उनको दे ही रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ कोई बात In case you missed, this is what the Axis banker says. हम लोग उनको लॉकर्स दे ही रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. We wonder about the reason for the special favors to those making investments with the bank. Nevertheless, the favors are certainly extended to Srivastava's client who inquires the procedure to transfer his black money overseas. इंस्टेंटली जो हमारा पैसा आएगा हम लॉकर में रख देंगे ना कैश, उसमें से 30-40 लाख उनको इंग्लैंड किसी को भेजना है, उसके आप करा देंगे वो भी? जब अकाउंट हो जाता है ना तो उसी से रेमिटेंस यही ब्रांच से आप ही कराएंगे? हमारे यहाँ से ही होता है, वो आपका पार्ट रहेगा, चेक चाहिए होगा बस रेमिटेंस के लिए। लेकिन उसमें हम कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि किसको भेजना है सबका। जहाँ पे आपको डालना है उसकी डिटेल्स चाहिए होती है, बाकी रीजन फंड्स की हाँ बस ठीक रीजन है, नहीं होता पक्का क्यों हो रहा है, ठीक है। उसकी डिटेल्स चाहिए होती है। तो No problem remitting black money to overseas accounts. No need to quote any reason. Axis Bank will take care of it all. With complete complicity of the senior management, Srivastava takes her client to meet her boss to demonstrate to her client that she has complete approval from her seniors. मैंने किसी ने आपको मिलवा दिया कि मतलब ऑपरेशन हेड हमारे मैनेजर रहेंगे, ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक बार मिलवा भी दिया आपको। शैली जी वो भी आप देखना कि कोई अगर इन फ्यूचर ऐसा हो कोई मेथड किसी कंपनी के अकाउंट से अगर हमारा पूरा जो 5-7 करोड़ आ रहा है वो अगर हमारा वाइट हो जाए 2 दिन 4 दिन में या किसी और अकाउंट से हो जाए, ठीक है ना, वो आप इन फ्यूचर बस ठीक, आप हमें बढ़िया मिल गई। This is one of India's most trusted banks, and it will launder any number of crores of rupees in any manner it can pull off. And the complicity of the senior management irons out any crumbles likely to be caused by the Income Tax Department. Such is the Axis Bank money laundering service. Our reporter carries the Cobra Post lens to Chandigarh branch of Axis Bank. Here he meets N. Gupta. Assistant manager with the branch who diligently describes a few investment plans. But when it came to the subject of converting black money to white, she refers our reporter to her well-experienced boss, saying जो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है जैसे वाइट ब्लैक की जो आप बता रहे हैं तो वो आपको पूरी क्लियर करेंगे। है और ये हमारी फरवरी में खुली है। जो हमारे सर हैं वो यहाँ पे 3 इयर्स तक ब्रांच हेड थे सोलन में, तो जैसे ऐसे उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे उठाई हैं, यहाँ पे भी उठती हैं, हर जगह ही होता है, पैसा लगता है इसी में, लोगों को टैक्स सेविंग चाहिए, टैक्स से कैश पड़ा ही होता है तो कहाँ लगाएगा, ये लगाएगा। जब पूरा वाइट हो रहा है तो वो भी चीज़ है एक, तो उस वजह से अब 4th ईयर में यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी अच्छा है। बाकी ये है कि जो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है जैसे वाइट ब्लैक जो आप बता रहे तो वो आपको पूरा क्लियर करेंगे। ही इज़ मोर एक्सपीरियंस दैन मी, इतना टाइम हो गया इनको, 2000 से ये बैंकिंग में है। Now meet the branch manager G. Singh. Is he indeed as experienced as we are told? We'll soon find out. कैश डालेंगे चेक से? कैश में है, चेक में नहीं है। कैश में तो फिर कैश में तो फिर रिपोर्टिंग है 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर है तो इंश्योरेंस में डालें फिर उसको। नहीं, इकट्ठा इंश्योरेंस में भी ना डाल सकते 1 करोड़ रुपया कैश में। नहीं, मैंने बताया 3 लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ है और जो नीता है उनके नाम से होना है। तो आपको तीनों में पैसा जमा करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। 3 अकाउंट खुल जाएंगे, कोई आज ही खोल दीजिए। फैमिली मेंबर्स के अकाउंट खोलने हैं तो खोल सकते हैं, उसमें आप 10 लाख से नीचे नीचे जमा करवाइए। जैसे ही अमाउंट पूरा हो जाता है अकाउंट में देन यू गो फॉर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में। हाँ, इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड में या जिसमें भी लगाना चाहते हैं, ऑप्शन हम आपको बता देंगे, तो आपको जो ठीक लगे उसमें से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट, ये बेस्ट है फिर, ये बेस्ट है। When you have 1 crore rupees to launder and the branch head asks you if your money is in cash or check, you know your battle is half won. All that is left to figure is the process, and this is the branch manager's advice. Open multiple accounts in the bank, add as many family members as possible, deposit the amount in small parts if the tax authorities are to be avoided, keep the deposits under 10 lakh rupees. From here, route the money into various investments.
Shortly, our reporter is introduced to another banker, R. Seth, who takes care of trust and NGO vertical in Axis Bank. R. Seth has years of experience in the business and he has a way of dealing with his clients' insecurities. तो नहीं फिर इसमें कल को हम इनकम टैक्स का 2-3 साल के बाद में नोटिस आ गया, कोई प्रॉब्लम हुई कि पैसा आपने डाला है, वो कब आएगा जब रिपोर्टिंग होगी? रिपोर्टिंग 10 लाख से ऊपर होती है, एक दिन में 10 लाख ट्रांजैक्शन। हम नहीं करेंगे, 10 नहीं करेंगे, वो तो जितना ही आपको बता रहा हूँ 10 कंप्राइजेज ऑफ जमा कराना है निकालना दोनों में। मतलब आप ये कहते हो जी 5 लाख जमा करा दिया, 5 लाख का डीडी बना दो, वो 10 लाख गिना जाएगा। Why worry about triggering IT alerts? Like Seth says, वो तब आएगा जब रिपोर्टिंग होगी. Clearly, the bank is not going to report this transaction. So what if it is required by the law? Seth advises his client to split the deposits of 10 lakh rupees equally into cash and demand drafts. And is there any way we can transfer some of this black money abroad? The minister's wife often travels to foreign countries. हम लोगों को एक TCDC कार्ड देंगे। ओके, देखो ठीक है। करेंसी कौन सी चलती है जॉर्डन में? जो ये तो पता नहीं क्या चलेगा, मुझे तो उनको देंगे यूएस करेंसी का कार्ड। ओके, ठीक है, वो एक ATM कार्ड है, कुछ नहीं उसका अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट यही लगेंगे जो आप ये लगा रहे हो। राइट। हमें बस जॉर्डन जिस दिन वीजा और पासपोर्ट पे वीजा लग जाए, टिकट आ जाए, बस वो 2 चीजें चाहिए होती हैं उसके लिए। कार्ड में आप अपलोड कर सकते हो पैसा यहाँ से। कितना लोड कर सकते हैं? कितना लोड? वो 10,000 USD के इक्वल। 10,000 USD के इक्वल, तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो गया, 5 लाख रुपए हो गए एक टाइम में। पैसा हो ना, इसमें 2 कार्ड ले जाओ, जितने मेंबर जा रहे हो उतने कार्ड ले जाओ, वहां छोड़ आओ। ओके, ठीक है, उतने ही फिर 2 महीने बाद फिर डाल दिए, यहाँ से पैसे डाल दिए, वहां से बंदा निकाल लेगा ATM। और दूसरा प्रोसेस ये है कि आपका वहां कोई बंदा है जिसकी मेंटेनेंस आप शो कर सको। ये तो मैं पूछ लूंगा, रिलेटिव रहते हैं कि जी हम तो इनकी मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हैं, है ना। उसमें भी एक रिलेशन प्रूव करना होता है, ये नहीं कि भाई जिस कंपनी को भेज दिया, मतलब एग्जैक्ट जो बैंक के नॉर्म्स में आता है वो रिलेशन होगा तो वो रेमिटेंस हो जाएगा। Axis Bank also shows you how to siphon off your black money overseas. Exchange your cash for TCDC cards from the bank. Take as many cards as the passengers traveling and load them up with 5 lakh rupees each. You don't even need an overseas bank account. Take the cards to the country you travel to and use the local ATMs to withdraw local currency. Better still, leave the cards behind with a friend or relative so you can carry more cards every time you travel. There's another method. Establish your relationship with an overseas resident and send some of your black money through remittance to the overseas account. Declare the motive as maintenance of the relation. Just make sure it falls under the bank's norms of establishing your relationship with the person you are sending the money to. Now that you have successfully siphoned off a good part of your money overseas, there is yet another money laundering method that this Axis banker will reveal. But you need some patience and heroic temerity to pull that off. Listen in. एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज शुरू करोगे तो फ्यूचर में बड़ा काम आएगा। जैसे आप यहाँ एक NGO बना लो, सोसाइटी रजिस्टर कर लो, घर के मेंबर बन जाएंगे उसमें। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से उसकी FCRA अकाउंट होता है, वो अप्रूवल ले लो, वो भी बंदे बुंदे हैं, पैसे दे के रखती हैं सारी। 5-6 महीने प्रोसेस है सारा। अच्छा, अगर करते जनवरी में करते हैं तो 5 महीने। NGO बनने से वो अप्रूवल आने तक 6 महीने लगते हैं, सारा काम। ओके। उसमें क्या है, फिर आपने यहाँ से जिस भी तरह से बाहर बंदा पैसा भेज दिया, जैसे भी आप चाहोगे, वहाँ से फिर आप डोनेशन के रूप में मंगा सकते हैं। जितना भी 2, 4, 5 करोड़ निकालना, जनवरी में आना ना पैसा तो हमारे पास में, उसमें 5 महीने लगेंगे हमें पीरियड करने में। हाँ, तो 5 महीने वेट करके फिर निकाल सकते हैं। फिर वो आपके नंबर 1 ही आएगा ना सारा बाहर से। हाँ, वो तो नंबर 1 का हो जाएगा, यहाँ से निकालना है, फिर उसको नंबर 1 करके वहाँ से मंगाना। ओके, ये आप इवनिंग में बता दीजिएगा उनको कि ये प्रोसीजर भी हो सकता है, अगर उनको अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सर क्या प्रोसेस, ये देखो, these are not valid process, बाकी आपकी। Like the Axis banker admits, these are not valid process, बाकी आपकी इच्छा, but recommends it anyway. Open a non-governmental organization by registering a society. Include your family in it as members. With a little bribe, you can get an FCRA account approved
by the Ministry of Home Affairs in about 6 months. Make reverse transactions of inward remittance of all the money siphoned off overseas. Show the transactions as donations. This will take care of 2, 4, 5, any number of crores that you wish to launder. This is artfully criminal. Coming from one of the most popular and trusted banks in the country, this is treason. Our undercover reporter at this point feigns timidity and the banker changes his stance. सीएम ने बोला था कि इंश्योरेंस के लिए, लेकिन उन्होंने ये पूछा था कि थोड़ा सा आप इसके बारे में विस्तार से पूछ लेना कि अकाउंट एनआरआई वाला कैसे खुलेगा। ये सारी डिटेल्स बता देंगे सामने, उसके बाद वो सीए से भी डिस्कस कर सकते हैं। वो करेगी नहीं करेगी वो उनकी हेडेक है। वो ये तो मेरा तो इंश्योरेंस वाला पार्ट है, मैं इसको यस करके जा रहा हूँ। ठीक है जी, नहीं देख लो जैसे भी है, वैसे वो पार्ट तो आप मत करो, वो गलत है। वो गलत भी नहीं, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं जितना आप बता रहे हो लंबा प्रोसीजर तो फिर मुझे दिक्कत है। आप सिर्फ वही करो जो आपको उन्होंने बोला है, आप ऐसे मत करो। अगर ये आप वो उनको आप बताइएगा, वो उनको लगता है तो वो फिर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है ना। One wonders how many crores of rupees of black money have been laundered away by Axis Bank under the guise of donations to NGOs. The banker backtracks on his radical suggestion after sensing his client's cold feet. Now, can the locals of Axis Bank accommodate about 7 crore rupees of cash? The branch manager calls for the assistant manager to assist his client. Singh agrees to allot multiple lockers to secure his client's illegal cash. So bring in all your black money to Axis Bank and the head of the branch will organize a guided tour of the locker room so you can decide the size and number of lockers that can accommodate your scam tainted cash. Take a look at these lockers. This is India's own Switzerland. One wonders how many of these metal boxes are stashed with insane illegal wealth. How many crores of rupees are sitting here waiting for a laundry spin.